now to the other big story that we have been tracking, and this is yet another exclusive, sensational development that's taken place in the Sonali Fogart case. Republic TV has now accessed documents revealing that Sonali Fogart's personal assistant, Sudhir Sangwan, had prepared documents of Fogart's farmhouse in Hisar. Now, Sangwan reportedly wanted to take the farmhouse on lease, and an agreement was prepared accordingly. Now, as per the report, Sangwan made an agreement and was ready to pay rent for about 60,000 rupees annually. But according to sources, the land worth is close to 40 crore rupees. Take a look at this report, and then we go across to our reporters on the ground getting us the latest details from Hisar and Goa. While investigation into Sonali Fogart's murder is underway, Republic TV has accessed her Hisar farmhouse lease documents. The documents reveal that Sonali Fogart's personal assistant Sudhir Sangwan tried to take her farmhouse on rent for a paltry sum. Sangwan, who is in police custody in connection with her murder, had prepared documents to take her Hisar farmhouse on lease for merely rupees 5,000 per month, that is rupees 60,000 annually. The market rate of the 6-acre land on which the farmhouse is situated is worth more than rupees 6 crore per acre. As per the investigation conducted by the Bihar and Goa police, Sangwan was allegedly pressurizing his employer to transfer the lease in his name for a number of years. The documents accessed by Republic TV show that Sangwan sought an appointment in the sub-registrar's office for registering the lease on these occasions and secured an appointment slip too. However, Fogart didn't reach the sub-registrar's office for completing the legal procedure. Earlier in the day, a team of Goa police arrived at her residence in Hisar as a part of its investigation. मर्डर का मेन मोटिव समझ में नहीं आ रहा है, ना खुल के गोवा पुलिस बता रही है, तो जांच कहाँ है? अच्छा, आपको लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक मोटिव भी हो सकता है, कुछ षड्यंत्र हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है जी। इसलिए आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल जी। यहाँ क्या क्या देखने लगे? यहाँ जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है उनकी फोटो ली है और जो सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे उनकी भी जांच की है उन्होंने? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सिर्फ। हिसार के रेड स्क्वायर में ये आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पर जो है गोवा पुलिस पहुंची है, अंदर गोवा पुलिस जो है वो है और सारी डिटेल्स जो है, ट्रांजैक्शन डिटेल जो है वो निकाल रही है। और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं बल्कि दूसरे तमाम जो सरकारी बैंक में जो अकाउंट है, दूसरे तमाम जो प्राइवेट बैंक में जो अकाउंट है, उन सब की डिटेल्स जो है वो निकाल रही है कि कितना पैसा कैश में आता था और कितने पैसों से कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है खरीदी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुधीर सांगवान को क्या ट्रांजैक्शन होता था और अगर रेगुलर ट्रांजैक्शन होता था तो कितना कितना पैसा जो है सुधीर सांगवान के अकाउंट में जो है सोनाली फोगाट की तरफ से डाला गया। Meanwhile, the post-mortem purportedly revealed that there were 46 injury marks on Fogart's body. Bureau Report, Republic TV. सोनाली फोगाट के जीजा जो हैं अमन पुनिया वो मौजूद हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं, किन किन लोगों के बयान दर्ज हुए हैं? सोनाली जी के मम्मी के, सोनाली जी के ब्रदर के और उनकी सिस्टर के और सर्वेंट के और शायद एक ड्राइवर के हुए। आप ये बताइए कि ये भी बात जांच में सामने आई है कि एक प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट था या जो फार्म हाउस है उसको जो है सुधीर जो है वो अपने नाम पर करवाना चाहता था। क्या था पूरा मसला और किस तरीके से वो फार्म हाउस को पे कब्जा करना चाहता था? वो हम कल कोर्ट में गए थे तो वहाँ से एडवोकेट से उसके कागज उठाए, हमने सारे देखा। तो वो जो फार्म हाउस है वो 6 एकड़ के ऊपर उस जमीन को मतलब लीज में लेना चाहता था, सालाना 60,000 रुपये। 60,000 के लीज पे? 60,000 के लीज पे। तो वो फिर आज वकील को भी बुलाया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वकील से भी पूछताछ की जा रही है। सोनाली जी ने मतलब कि वो टोकन 3 बार कट चुका था उसका, सिर्फ वो अगर एक बार चले जाते फोटो और साइन ही बाकी थे, अदरवाइज सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी। क्या टोकन मनी भी दिया जा चुका? जी 3 बार दिया जा चुका था टोकन मनी। तो 3 बार दिया जा चुका लेकिन वो अपने नाम पर करवा नहीं पाया, इसके पीछे वजह क्या? बस इसके पीछे वजह तो अभी वकील साहब बता सकते हैं तो या फिर सोनाली जी बता सकते हैं। Well, in fact, we are also getting in some more breaking news on the Sonali Fogart case. In a short while from now, we'll also put out the latest that we're getting in terms of the calls that were made
by Sonali Phogat. Remember, the family has made this allegation that this was a pre-planned conspiracy. The fact that she was brought to Goa, there seems to be a motive behind it. Let me go across to my colleague Amit, who's joining us from Hisar, and we'll also bring in Alicia, who's joining us from Goa, to go across to the details of those phone call records. But सबसे पहले अमित आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स, फार्म हाउस के जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं, उससे क्या जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप ये लग रहे थे कि सुधीर सांगवान और बाकी जो अक्यूज्ड है इस पूरे मामले में, वो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है और वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हाथ लगा है उसमें क्या लिखा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसी फार्म हाउस में मौजूद हूं और मैं फार्म हाउस की एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये फार्म हाउस जो है करीब 3 एकड़ में फैला हुआ है और इस फार्म हाउस के ठीक सामने 3 एकड़ में वेयर हाउस भी है। करीब 6.5 एकड़ की जो है पूरी जमीन बताई जा रही है और ये 40 करोड़ इसकी कीमत है और सिर्फ 5,000 रुपये मंथली रेंट पर वो अपने नाम पर लीज करवाना चाहता था, यानी कि और उसके लिए उसे सारे पेपर्स जो है सुधीर सांगवान ने सारे पेपर तैयार करवा लिया था। लेकिन 3 तारीख मिली, आखिरी तारीख जो है वो इसी जो पिछले महीने की यानी 12 अगस्त की, और 12 अगस्त को आखिरी तारीख थी, लेकिन सोनाली फोगाट पहुंच नहीं पाती है और 22 अगस्त को यानी कि ठीक 10 दिन बाद वो जाती है गोवा। तो क्या ये साजिशतन हुआ है, क्या साजिश के रची गई, क्योंकि बार बार आखिर वो जा क्यों नहीं रही थी? 3 डेट्स क्यों कैंसिल की सोनाली फोगाट ने? क्या सोनाली फोगाट ये प्रॉपर्टी जो है वो लीज पर नहीं देना चाह रही थी? क्या उसके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और उसके बाद फिर उसे गोवा ले जाया गया और क्या वहां पर उसकी हत्या कर दी? परिवार को ये सारे रिकॉर्ड्स तहसील ऑफिस से मिलते हैं, क्योंकि परिवार वहां पर गया और उससे जाकर के सारी प्रॉपर्टी के जो है उसके नाम पर, सोनाली के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, जब उसको जांचा, जब उसके डिटेल्स निकलवाई, तो ये चौंकाने वाले जो हैं ये सामने आया कि 3 बार जो है टोकन मनी दिया जा चुका था। बाकायदा उसके जो सुधीर सांगवान है उसके नाम पर जो पेपर हैं वो सबमिट हुए थे, 3 डेट्स भी मिली थी, लेकिन तीनों डेट पर सोनाली फोगाट जो है वो नहीं पहुंचती है और यही वजह है कि ये फार्म हाउस और सामने का वेयर हाउस जो है जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए है वो सुधीर सांगवान के नाम पर जो है नहीं जा पाती है, उसके नाम पर जो है ट्रांसफर नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए परिवार को इसीलिए एक साजिश की बू आ रही है और परिवार का कहना है कि हो सकता है कि 40 करोड़ रुपए की ये जो प्रॉपर्टी है इसी के लिए सोनाली फोगाट की हत्या कर दी गई या हत्या की जो साजिश है वो रची गई। जी अमित, और एक जो जानकारी इस वक्त आ रही है वो है फोन कॉल रिकॉर्ड्स को लेकर कि किस तरह से कुछ ऐसे फोन कॉल्स किए गए थे। सोनाली फोगाट ने खुद अपने परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ इसके कारण जो आरोप वो लगा रहे कि एक तरह से जो फ़ोन कॉल किया गया था वो 6 मिनट, लगातार 6 मिनट तक वो बातचीत हुई थी। आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है, वो कॉल आखिरकार किस कारण किया गया था और ये पूरे डिटेल्स क्या गोवा पुलिस को सौंपा गया है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार की तरफ से 2 स्क्रीनशॉट जो हैं वो भेजे गए हैं। उस स्क्रीनशॉट में आखिरी बार जो है सोनाली फोगाट ने अपने जो जीजा है और बहन से बात की थी। इससे पहले देखिए बहन की तरफ से कॉल जाता है लेकिन फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और ये फ़ोन जो है 22 तारीख, जिस रात पार्टी हुई 22 तारीख को 9:43 पे एक कॉल होता है, 9:44 पे 9:44 पे जो कॉल होता है उसको सिर्फ 5 सेकंड के लिए यानी कि पिक करके उसको कट कर दिया जाता है। उसके बाद करीब 10:13 पे सोनाली फोगाट खुद फ़ोन करती है और ये व्हाट्सअप कॉल होता है, व्हाट्सअप कॉल करती है उनको और बताती है, बात करती है करीब 6:54 तक। परिवार का कहना है कि उस दौरान वो किसी टेंशन में नहीं लग रही थी, उस दौरान उसकी कहीं से कोई तबीयत खराब नहीं लग रही थी और उस दौरान उसको किसी तरीके से कोई हार्ट की कोई दिक्कत उसको थी नहीं। तो ऐसे उसके बाद जो है वो पार्टी शुरू होती है और पार्टी में जिस तरीके से सोनाली फोगाट की जो हालत होती है तो कहीं ना कहीं परिवार को लगता है कि उसको ड्रग्स ज़्यादा दिया गया और परिवार ये भी कह रहा है कि हो सकता है ड्रग्स के साथ साथ जहर का भी इस्तेमाल किया गया हो। यही वजह है कि परिवार लगातार अभी भी डटा हुआ है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। गोवा पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही है लेकिन गोवा पुलिस की छानबीन से परिवार जो है वो खुश नहीं है। उसके जीजा बोल चुके हैं, उसके भाई बोल चुके हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और इसकी इंक्वायरी जो है सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये मामला ड्रग्स का नहीं बल्कि ये मामला हत्या का है, पॉलिटिकल साजिश का है। जी
अमित, इस वक्त और एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है, वो है कि गोवा पुलिस इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल से वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से जो मोटिव है मर्डर की, जो मोटिव की बात की जा रही थी कि वो ड्रग्स, तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे कंस्पिरेसी का पार्ट हो चुका है, पर किस तरह से जो प्रॉपर्टीज को लेकर जो मोटिव निकल कर आ रहा है उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमारे पास है कि गोवा पुलिस इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स से मुलाकात कर चुके हैं और वो प्रॉपर्टीज को लेकर, दीज आर द लेटेस्ट डिटेल्स वी आर गेटिंग इन। ब्रेकिंग न्यूज नाउ कमिंग इन, गोवा पुलिस has met the revenue department officials. This is pertaining to what we are being told is properties belonging to Sonali Phogat. Let me quickly go back to my colleague Amit, who's getting us the latest details from Hisar right now. Amit, प्रॉपर्टीज को लेकर क्या आपको लगता है कि आखिरकार जो मोटिव की बात हो रही है, मर्डर की मोटिव की बात हो रही है, क्या इसके साथ तार जुड़ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के कारण कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट की मर्डर किया गया? बिल्कुल, देखिए, और 40 करोड़ का ये लैंड है जिस लैंड पर फिलहाल मैं अभी खड़ा हूं, और इसी को लेकर के परिवार को शक है। परिवार ने कल जो है गोवा पुलिस के सामने अपनी बात रखी। बाकायदा गोवा पुलिस ने एक वकील से पूछताछ भी की जिसने पूरे के पूरे लीज पेपर तैयार किए थे। आज जो है गोवा पुलिस तहसीलदार से मिलती है, जो तहसीलदार है HK गुप्ता, उनसे मुलाकात हुई। करीब 1.5 घंटे मुलाकात चलती है और मुलाकात के दौरान तमाम प्रॉपर्टी डिटेल्स जो हिसार तहसील के तहत जो सोनाली फोगाट के नाम पर है, उन सब की डिटेल्स मांगी गई है। हमारी जो टेरेन डिकोस्टा हैं, जो ऑफिसर हैं गोवा पुलिस के, उनसे बात हुई। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये कहा कि उनकी तरफ से एक अर्जी लगाई गई है तहसील में, ताकि सोनाली फोगाट के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी की भी डिटेल उनको भेजी जाए, जो उन्होंने अभी बेची है और खरीदी है तो किससे खरीदी है। ऐसे में देखिए, परिवार को शक है कि हो सकता है कि कुछ और प्रॉपर्टी सोनाली फोगाट के नाम पर हो और जिसको हो सकता है सुधीर सांगवान ने अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया हो। तो ये तमाम डिटेल्स के लिए जो टीम है गोवा पुलिस की, उसके साथ हरियाणा पुलिस के लोकल अधिकारी भी थे, वो पहुंचते हैं तहसील ऑफिस में, 1.5 घंटे तक वहां रहते हैं और उसके बाद जो है एप्लीकेशन दायर करते हैं कि जांच के लिए उन्हें सारी डिटेल चाहिए। इससे पहले जो है 3 बैंक, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 3 बैंक में गोवा पुलिस जो है वो पहुंचती है और वहां पर उन बैंक में सोनाली फोगाट के जो हैं वो खाते थे, जिसमें SBI हमें बताया जा रहा है, जिसमें ICICI बैंक हमें बताया जा रहा है। तो इन बैंक में इनके खाते थे और वहां पर खाते की पूरी जो है डिटेल मांगी है वहां पर भी, कि ट्रांजैक्शन किस किस को हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या सुधीर सांगवान को पैसा इनके अकाउंट से ट्रांसफर होता था और अगर होता था तो उसकी रकम क्या है। ये पूरी की पूरी जो डिटेल है वो मांगी गई है। मतलब साफ है कि गोवा पुलिस अब परिवार के कहने पर ये समझ रहा है कि हो सकता है कोई साजिश हो, सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं हो, जानबूझ के ड्रग्स के साथ जहर दिया गया हो या ड्रग्स को ओवरडोज जानबूझकर किया हो और ये साजिश के तहत हुआ है। जी, Thank you very much, Amit Chaudhary, for getting us the latest details from Hisar. Republic Media Network, the only network getting you the latest details as far as the accused are concerned. Latest pictures and also the lease documents that have been accessed by Republic TV. Shifting